أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ تو آج کا جیسے سب کو پتہ ہے کہ ٹاپک ہے کامیابی، سکسیس۔ تو اس کو کہتے ہیں عربی میں فلاح۔ فلاح جو ہے ایک عربک ورڈ ہے، عربی ورڈ ہے جو کہ کہاں سے نکلا ہے، جسے بولتے ہیں کھیتی کرنا یا زمین جوتنا۔ فلاح بولتے ہیں کھیتی کرنا یا زمین جوتنے کو۔ اب فلاح کو کامیابی کیوں بولا گیا؟ کیونکہ جب ایک کسان ہوتا ہے وہ کامیاب کیسے ہوتا ہے کہ وہ فصل کو کاٹتا ہے۔ وہ فصل کس طریقے سے کاٹتا ہے کہ وہ بیج بوتا ہے اور پھر فصل کاٹتا ہے جو کہ اس کی 100 گنا بڑی ہوتی ہے، تو اس کا گول اچیو ہو جاتا ہے، پلس اسے کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں فلاح کے ورڈ سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ کامیابی جو ہے ایک فائدے مند چیز ہے، یعنی کہ جو کامیابی ہے وہ کیا ہے کہ وہ فائدہ مند چیز ہے۔ الحمدللہ۔ تو سٹارٹ کریں گے۔ تو آج کل کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کتنی چیزیں ہیں۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں خود غرضی، جہاں لاپرواہی، جہاں غیبت، جہاں ریاکاری ہے اور جہاں بے وفائی ہے، روزمرہ کے جو معمول ہیں یہاں پر، تو وہاں انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی کامیاب ہونا تو چاہتا ہے، لیکن ہر کوئی کامیاب ہوتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں اصل میں کہ کامیابی ہوتی کیا ہے۔ اگر ہم جو ہے یہاں پر بات کریں کامیابی کی، تو زیادہ تر لوگوں کے منہ سے نکلتا ہے دولت، لیکن ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی دولت کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کیا ہوتی ہے، سراسر ناکامی ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم جو کامیابی ہے اس کی جو ہے کچھ قسمیں جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے کامیابی۔ ایک طریقے سے علم حاصل کرنا، تجربہ حاصل کرنا۔ ہم کسی انسان کو کامیاب کب بولتے ہیں؟ بیسیکلی جب اس انسان کے پاس کیا ہوتا ہے سسٹرز، کیا ہوتا ہے، یا تو علم ہے بہت زیادہ، ارے وہ بہت زیادہ کامیاب ہے، یا تو ایکسپیرینس اس کے پاس ہوگا۔ اب چاہے وہ اکیڈمک ایکسپیرینس ہو، چاہے وہ اس کے پاس اسپورٹس کا ایکسپیرینس ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ جب انسان کو ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کامیاب انسان ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان اگر بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو ہم اس کو کامیابی بولتے ہیں، یا کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کامیاب ہے۔ ان سبھی چیزوں کو اچھے اور برے دونوں طریقوں سے جو ہے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے خرچ کرنے کی بات یہاں پر کیوں آ رہی ہے؟ حالانکہ بات تو کامیابی کی ہو رہی ہے، لیکن خرچ کرنے کی بات کیوں آئی؟ کہ فلاح کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کسان کو پہلے بیج بونا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے کیا کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اسے سینچنا ہوتا ہے، یعنی کہ پانی، دھوپ، ہر چیز سے اسے بچانا ہوتا ہے۔ دین اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ 100 گنا زیادہ کیا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے اس کی فصل، اینڈ ان لاسٹ اس کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ کاٹنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے دولت کی یہاں میں نے کئی قسمیں بتا دی ہیں، جیسے کہ علم ہے، تجربہ ہے، خوبصورتی ہے، مال ہے۔ تو اب ان چیزوں کو دونوں طریقے سے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کامیابی دو طریقے سے بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا، دن اور رات، ٹھنڈی اور کیا گرمی، سردی اور گرمی، اسی طریقے سے روشنی اور اندھیرا، اور اسی طریقے سے یہاں والی دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کی چیزیں۔ تو اگر دنیاوی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو گئی تو وہ پارشل ہوگی۔ پارشل بیسیکلی کیا ہوا کہ ایک ہی پارٹ جو ہے، ٹو پارٹس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا، تو 2 پارٹس میں کیا ہوگا کہ 50% پارٹس جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور 50% جو ہے بہنوں وہ رہ جائے گا۔ تو اب دولت کی ان سب قسمیں جو کہ میں نے بتائی، علم، تجربہ، خوبصورتی، مال اور بھی بہت ساری چیزیں، اولاد بھی ہوتی ہے، ہماری کامیابی تک تب تک نہیں ہے جب تک کہ وہ فائدے مند نہ ہو، ہے نا۔ ہمیں پتہ چلا کہ کامیابی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، تو جب تک ان قسموں کو ہم ایسی جگہ خرچ نہیں کریں گے جہاں پر فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ قرآن جو ہے کیا کہتا ہے
कुरान बोलता है कि इस्लाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कामयाबी क्या है, मुनाफा बख्श चीज़ है, यानी कि फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन कामयाबी की क्या शर्त है कि कामयाबी कामयाबी जब तक नहीं तब तक कि वो फ़ायदेमंद ना हो। लेकिन किसके लिए फ़ायदेमंद? एक ऐसी चीज़ जो हासिल करने वाले को फ़ायदा पहुँचाए और दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए और जो है आखिरत की दुनिया में भी फ़ायदा पहुँचाए। यानी कि तीनों जगह पर उस चीज़ से क्या होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। तो फ़ायदेमंद चीज़ है, हमें ये पता चला अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए हमें मेहनत भी करनी है क्योंकि वो बीज है, उसे हमें बोना है, उसे हमें सींचना है, उसे हमें सब कुछ करना है। लेकिन फ़ायदा किस-किस को है? जो कामयाब इंसान है उसको खुद को फ़ायदा, फिर उसके अलावा जो उससे जुड़े लोग हैं, दूसरों को फ़ायदा या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक को फ़ायदा। फिर तीसरा क्या है कि ऐसे लोगों को फ़ायदा जो कि क्या है मतलब आखिरत में जो है उसको उस चीज़ का फ़ायदा हो। तो अब किस्म जो थी उन किस्मों को किस तरीके से यूज़ किया जाए। एग्ज़ाम्पल लेते हैं वेल्थ यानी कि पैसा। पैसे को अगर हम खर्च करते हैं, अपने ऊपर खर्च करेंगे तो मान लीजिए अगर हम अपने ऊपर खर्च करते हैं तो क्या हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या लिया, हमने मिसवाक लिया। तो हम मिसवाक ले रहे हैं और हम मिसवाक कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि सुन्नत भी अदा हो रही है और मिसवाक भी। जो हमने खरीदा तो सुन्नत अदा करने के लिए मैं खरीदा। तो वो क्या है? वो मेरे लिए फ़ायदेमंद चीज़ हो गई यहाँ भी और आखिरत के लिए भी। दूसरे को अगर जो है मैंने कुरान खरीद के दिया तो वो मेरे लिए यहाँ भी फ़ायदेमंद हो गया और आखिरत के लिए भी फ़ायदेमंद हो गया और जो इंसान इससे पढ़कर क्या करेगा, हिदायत भी पाएगा, तो वो उसके लिए क्या चीज़ हो गई, फ़ायदेमंद हो गई। तो यानी कि वो इंसान कामयाब है। कामयाबी किस तरीके से फ़ायदेमंद हुई? किसी इंसान का पैसा किस तरीके से उस कोई इंसान के पैसे को किस तरीके से कामयाब कहा जाएगा कि उससे किसको फ़ायदा हो, उस खर्च करने वाले को भी हो, जिस पर खर्च कर रहा हो उसको भी हो और आखिरत में भी वो उसका फ़ायदा उठाए। इसी तरीके से अगर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे जो कि कामयाबी किसकी दौलत की एक किस्म है, कैसे? इल्म। इल्म पर अगर जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन इंसान करता है, इल्म पढ़ता है, मान लीजिए हम लोग कितनी भी सभी बहनें हम यहाँ पढ़ने आती हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम खुद में ढूँढते हैं चीज़ें। अब मान लीजिए हसद वाला टॉपिक ही हुआ था, तो हसद वाले टॉपिक में कहीं न कहीं हमने देखा होगा कि ये तो मैं करती हूँ। तो यहाँ आपने इल्म लिया और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपने जाकर क्या किया? दुआ माँगी कि अल्लाह मेरे अंदर तो ये चीज़ है और मैं नहीं चाहती कि मेरे अंदर हसद की चीज़ हो। तो हमने कहीं न कहीं खुद को क्या किया? इम्प्रूव कर लिया, बेहतर कर लिया। तो इल्म को हमने खुद पर खर्च किया, तो हम बेहतर हो गए, यानी कि वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ क्यों? क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई यानी कि मेरी रूहानी तरक्की हुई उससे। उसी तरीके से दूसरों पर अगर मैं कोई चीज़ सीख कर किसी दूसरे इंसान को सिखाती हूँ, तो क्या है? दूसरों को उस चीज़ से फ़ायदा है, यानी कि वो चीज़ मैं हमेशा से करती आई हूँ और वो इंसान जो है क्या करता है, उस चीज़ को फ़ॉलो करने लगता है, तो उसके लिए फ़ायदा है। इसी तरीके से आखिरत में जब तक वो इंसान उस चीज़ पर एक्ट करता रहेगा, अमल करता रहेगा, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, सदकाए जरिया। तो कामयाबी एक क्या चीज़ है, एक फ़ायदेमंद चीज़ है, नफ़ा पहुँचाने वाली चीज़ है, जिससे कि उसके करने वाले को फ़ायदा हो, दूसरों को फ़ायदा हो और जो है आखिरत में भी फ़ायदा हो। तजुर्बे की अगर हम बात करेंगे, एक्सपीरियंस की, तो अगर मैंने कोई गलती की, तो मैं दूसरे को ठीक करूँगी। और वो दूसरा अगर ठीक करेगा, तो उसकी अगर कोई चीज़ें भली होंगी तो उसमें क्या है मेरे लिए अज्र है। खूबसूरती की अगर बात करें तो अच्छा अखलाक जो कि दूसरा जो है मेरी तरीके से मीठी ज़ुबान बोले कि वो बहुत ज़्यादा मीठी बात करती हैं या फिर जो है मैं किसी का अच्छा अखलाक देखकर उससे बोलूँ कि वो बहुत कामली बात करती हैं। तो उनसे अगर मैं सीखती हूँ तो क्या होगा कि ये भी एक फ़ायदे वाली चीज़ है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फलाह कामयाबी। कामयाबी एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है। कामयाबी की कई सारी किस्में हैं। ज़्यादातर लोग इसको दौलत से जो है क्या करते हैं, वो करते हैं दौलत से जोड़ते हैं और दौलत की भी कई किस्में होती हैं। अब इसी तरीके से अगर इस्लाम के अप्रोच में देखा जाए तो ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जिस पे दीन और दुनियावी चीज़ें दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने दोनों हाथों की उँगलियाँ हैं, उनको एक दूसरे में डालें तो वो साँचे में फिट हो जाती है ना? जैसे कि उसी तरीके से बनी हो तो इसी तरीके से दीन और दुनिया दोनों चीज़ें कैसी होनी चाहिए?
चाहिए, फिट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को जोड़ों में बनाया है। तो दुनिया की कामयाबी सिर्फ़ कामयाबी नहीं है, आखिरत की कामयाबी भी उसके अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे कि और आखिरत की कामयाबी भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ किसमें लगे, नमाज़ में लगे, रोज़ों में लगे और जो आपके असल फ़र्ज़ हैं, जो कि आपकी फ़ैमिली की तरफ है, जो कि आपकी माँ की तरफ है, जो आपकी बीवी की तरफ है, वो हुकूक जो हैं हमने छोड़ दिए। जो ऐसी चीज़ जो सब जगह फ़ायदा पहुँचाए, मुझे फ़ायदा पहुँचाए, दूसरों को मुझसे जुड़े लोगों को फ़ायदा पहुँचाए और क्या हो आखिरत में भी उसका फ़ायदा मिले। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिज़नेसमैन होता है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, तो एक ऐसा शख्स जो अपनी वर्क लाइफ़ में सक्सेसफुल होता है, लेकिन फैमिली में नहीं तो उसे हम कामयाब नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो इंसान फैमिली की तरफ से अनसक्सेसफुल है। हाँ, आवाज़ कम है सिस्टर? क्योंकि अगर वो इंसान फैमिली की तरफ से अनसक्सेसफुल है, तो उसको स्ट्रेस बढ़ेगा, जो बाद में उसके वर्क लाइफ पर इफ़ेक्ट कर सकता है और उसी की क्वालिटी ऑफ वर्क को क्या कर सकता है, इफ़ेक्ट करेगी। अगर उसका स्ट्रेस बढ़ेगा, तो उसका क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इफ़ेक्ट होगा। तो बैलेंस ज़रूरी है, दुनिया की हर चीज़ में कामयाब होना भी ज़रूरी है, हर जगह पर। यानी कि एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ नीड्स क्या बैलेंस, क्योंकि हर जगह की कामयाबी हमें चाहिए और हर जगह हमें क्या है फ़ायदा चाहिए। तो ऐसा एस्पेक्ट जहाँ खुद को, दूसरों को और आखिरत में जो है फ़ायदा है। तो यानी कि ट्रू सक्सेस रिक्वायर्स सम बैलेंस इन आवर लाइफ, यानी कि हर एस्पेक्ट्स में, हर पहलू में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, किस चीज़ की, रूहानी तरक्की की। अब मान लीजिए सिर्फ़ हम काम, काम, काम ही किए जा रहे हैं और जिस्म को जो है थका ले रहे हैं। तो जिस्म क्या होगा, बुढ़ापा जल्दी आने लग जाएगा। तो जिस्म को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उस चीज़ से। तो हर चीज़ क्या है, बैलेंस जो है उस ज़रूरी है और फ़ायदा हर चीज़ को होना चाहिए, कामयाबी वही कामयाबी है। अब स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं कि कुछ लोग इतना ज़्यादा तरक्की करते हैं कि उस चीज़ को छोड़ देते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ को, रूहानी चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल आजकल लोग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नमाज़ बनाई है, वो इंसानों के लिए कहा कि नमाज़ तुम्हारे लिए है, तुम्हारी सोल के लिए है। लेकिन लोग आजकल वैसी तरक्की के चक्कर में, वैसी कामयाबी पाने के चक्कर में स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही छोड़ देते हैं। अब जब स्पिरिचुअल ग्रोथ को छोड़ दे रहे हैं, तो उसमें तीनों चीज़ें पूरी ही नहीं होंगी कि ना मुझे तो फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, जो मैं कमा रही हूँ। हाँ, समझ आ रहा है ना सिस्टर्स? जितना भी मैं बात कर रही हूँ अभी तक, प्लीज़ जो है मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि अगर मैं दुनियावी काम कर रही हूँ सारे, तो वहाँ पर मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ को अल्हम्दुलिल्लाह स्पिरिचुअल ग्रोथ को मैं क्या कर रही हूँ वहाँ पर छोड़ दे रही हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। तो मैं काम किसके लिए कर रही हूँ? दूसरों के लिए। हाँ, उससे मेरी मदर को फ़ायदा हो सकता है, उससे मेरे बीवी बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, उससे मेरे जो मुझसे जुड़े लोग हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं मैं अपने जिस्म को थका कर और अपनी सोल के साथ क्या कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ और वहाँ से मेरी रूहानी तरक्की तो हो ही नहीं रही है। तो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल, ठीक है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना ज़रूरी है। अब देखिए क्या सिर्फ़ यही दोनों चीज़ें, रूहानी पर्सनल ग्रोथ, हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ और जो है वर्क लाइफ़, क्या इन्हीं चीज़ यही चीज़ जो है ये कामयाबी है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि 2 चीज़ें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को कैसे बनाया? 2 चीज़ों में बनाया, यानी कि जोड़ों में बनाया। तो ये तो हमने बात कर ली किस चीज़ के लिए, हाँ, किस चीज़ के लिए बात कर ली हमने, उसकी तरक्की के लिए। कौन-सी तरक्की के लिए? दुनियावी तरक्की के लिए। देखिए अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है यहाँ पर जो है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 29 में फरमाते हैं, वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन में है, फिर आसमान की तरफ इस्तवा कसद फरमाया तो ठीक 7 आसमान बनाए, वो सब कुछ जानता है। तो इसका हम जो पहला वाला वो है स्टैन्ज़ा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन में है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कह रहे हैं कि जो ज़मीन में चीज़ें हैं, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो किसके लिए? इंसान के लिए ही बनाई गई हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल तरक्की के लिए या फिर रूहानी तरक्की, रूहानी कामयाबी के लिए इंसान क्या कर ले कि जितनी भी दुनियावी चीज़ें हैं, उनका लुत्फ़ ही उठाना भूल जाए, उनकी लज़्ज़त ही उठाना भूल जाए। और ऐसा भी नहीं करना है कि इनकी लज़्ज़त इतनी ज़्यादा हो जाए कि इंसान जो है रूहानी तरक्की भूल जाए और आखिरत में इसका फ़ायदा क्या है, वो चीज़ भूल जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों चीज़ें जो हैं पर्सनल ग्रोथ और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ जो है साथ में होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल आराफ की आयत नंबर 31 से 33 में कहते हैं, ए आदम की औलाद, अपनी ज़ीनत लो जब मस्जिद में जाओ। ज़ीनत यहाँ पर कपड़ों को बोला गया। अपनी ज़ीनत यानी कि अच्छा कपड़ा लो जब मस्जिद में जाओ, और खाओ और पियो, और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले उससे पसंद नहीं है। यानी कि यहाँ क्या कहा गया कि यू कैन डू वट एवर यू कैन, किसमें? हद से, जो कि लिमिटेशंस है एक इस्लाम की। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पहली वाली आयत नंबर 29 में क्या कहा कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे ही लिए हैं। तो आप दुनिया की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, है ना? दुनिया की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और उससे जो है कामयाब भी हो सकते हैं। तो देखिए, कामयाबी का मतलब यहाँ से दोनों चीज़ों से है ना, दुनियावी भी और आखिरत भी। क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ने जोड़े में बनाई है। क्योंकि अगर कहीं एक की कामयाबी होगी तो वो फिर पार्शियल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ दुनिया में अखलाक हैं, वो आपके बाहर भी गिने जाएँगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 32 में फरमाते हैं, तुम फरमाओ किसने हराम की अल्लाह की वो ज़ीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप फरमाइए कि वो जो हराम किसने हराम की है ज़ीनत। ज़ीनत यानी कि अच्छे कपड़े, जो अल्लाह अल्लाह ने अपने बंदों के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी ज़ीनत जो ढकने वाली चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है, वो अपने बंदों के लिए निकाली। वो किसने हराम की? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों के लिए वो चीज़ की है। और पाक रिज़्क, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर है वो खा नहीं सकते, जो यहाँ पर है वो पहन नहीं सकते। तुम फरमाओ कि वो ईमान वालों के लिए है। किसके लिए है ये सब चीज़ें? ईमान वालों के लिए हैं। और ईमान वाले क्या करेंगे? कामयाब होंगे इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए, लेकिन हद से नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। दुनिया में और क़यामत में क्या कहा? तुम ईमान लाओ, ईमान वालों के लिए हैं दुनिया में और क़यामत में, तो ख़ास उन्हीं के हैं। हम यूँ ही मुफ़स्सिल आयतें बयान करते हैं इल्म वालों के लिए, यानी कि जिनको नॉलेज होगी, जिनको इल्म होगी, तो वो क्या करेंगे? इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो नॉलेजेबल होंगे वो समझेंगे कि किन के लिए आयत है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 33 में कहते हैं, तुम फरमाओ मेरे रब ने तो बेहयाइयाँ हराम फरमाई है। देखिए, इससे पहली आयत में क्या कहा कि ज़ीनत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम नहीं फरमाई, अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास, पाक रिज़्क, अच्छा खाना अल्लाह ने हराम नहीं फरमाया। अल्लाह ने क्या हराम फरमाया? बेहयाइयाँ हराम फरमाई है, जो उनमें खुली हैं और जो छुपी हैं, और गुनाह और नाहक ज़्यादती, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो ये हराम फरमाया। तुम ये ना सोचो कि सिर्फ़ आखिरत की ही कामयाबी तुमको कामयाब करेगी, दोनों जगह की कामयाबी, दुनिया में भी कामयाब और कहाँ? आखिरत में भी कामयाब। तो गुनाह और नाहक की ज़्यादती के अल्लाह का शरीक करो, कि अल्लाह का शरीक करो जिसकी उसने सनद ना उतारी, और ये कि अल्लाह पर वो बात कहो जिसका इल्म नहीं रखती है। तो अल्लाह ने यहाँ पर क्या बात हो रही है? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि दुनिया की कामयाबी नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी चीज़ें दी वो हमारे लिए दी, तो दुनिया की चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए, यानी कि मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या, मान लीजिए अगर आप जिम भी जाते हैं तो दैट इज़ फाइन, ठीक है? तो वो ग्रोथ क्या है? वो आपके लिए है, वो आप कर सकते हैं, तो वो ग्रोथ भी ग्रोथ है। कभी भी ये नहीं कि सिर्फ़ आखिरत ही आखिरत है। दोनों चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन बैलेंस करना है दोनों चीज़ों को, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरीके से आयत नंबर 14 और 15 है ये सूरह अल अला की। वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया और अपने रब को याद किया और नमाज़ पढ़ी। कौन लोग कामयाब हैं? जिसने क्या किया? अपनी नफ्स को पाक किया और अपने रब को याद किया और नमाज़ पढ़ी। अब देखिए, यहाँ पर किस जगह की बात हो रही है? हमने पर्सनल ग्रोथ तो देख ली कि भई जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कामयाब वही लोग हैं जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं ना, यानी कि आप दुनिया की जो चीज़ें हैं वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अल्लाह ने वो चीज़ हराम नहीं फरमाई, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि बिल्कुल से मस्जिद में बैठे हैं और घर में जो है उनके बीवी बच्चे रो रहे हैं। तो उस तरीके की भी इबादत अल्लाह को नहीं पसंद। अल्लाह ने हर ड्यूटी दी है, हर तरीके के हुकूक और फ़र्ज़ दिए हैं इंसान को। तो ये इस चीज़ के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या है कि जब यहाँ पर होगी तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें बराक ओबामा, हाँ, प्रिंस विलियम, माइकल जैक्सन, या फिर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत ज़्यादा फेमस जो है लोग हैं हमारे सामने।
बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, शोहरत वाले हैं, इनमें से किसी न किसी को आप लोग सब जानते होंगे। तो हमें हमें क्या लगता है, हम गलती से इस चीज़ को कामयाबी डिक्लेयर कर देते हैं कि अरे! वो लोग तो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, ठीक है? तो ये हकीकत है कि वो लोग सक्सेसफुल हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग हकीकत में सक्सेसफुल नहीं हैं या कामयाब नहीं हैं। लेकिन क्या है, उनकी नज़रों में वो सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक गोल जो है बनाया, उसको क्या किया, अचीव किया। यानी कि उनका एक गोल था, यानी कि उन्होंने एक बीज बोया, उस चीज़ को के लिए क्या की, मेहनत की, और जो है फिर उन्होंने वो चीज़ पा ली, तो उन्हें क्या लगा कि वो जो है सक्सेसफुल हो गए। और आजकल हम भी जो है उसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, कामयाबी के तरीके से देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को किस तरीके से बताया कि वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया और अपने रब को याद किया और नमाज पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से अल्लाह ने क्या कहा कि कौन है कामयाब होने वाला, जिसने क्या किया, दूसरे लफ्जों में अगर बोला जाए, जो शख्स अपने दिल और दिमाग को गलत चीजों से रोके, हाँ, किसी गलत सोच से पाक रखता है, अपने आप को बुराइयों से पाक रखता है, रहमान या फिर रब का जो है फर्मा बरदार बंदा होता है और सच्चा बंदा होता है, तो वही कामयाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुनियावी कामयाबी भी है, उसके लिए भी गोल सेट करना होता है, लेकिन आखिरत की कामयाबी के लिए क्या करना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस चीज को पाक रखना होता है। किस चीज़ को? अपने खुद को पाक रखना होता है और जो है अपने रब को याद करना होता है। तो आखिरत की कामयाबी क्या है? खुद को पाक रखें गलत चीज़ों से, और आखिरत में कैसे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करें। तो वो कामयाबी पार्शियल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कुरान जो शख्स अपने रब की खुशनुदी ना हासिल कर सके, यानी कि उसका प्लेज़र ना हासिल कर सके और उसमें नाकाम रहे, तो वो अपने मकसद में नाकाम रहता है, और इस वजह से वो नाकाम होता है, और वो क्या है, खसीरों में से हो जाता है, यानी कि जो लोग लूजर्स और फेलियर्स होते हैं। क्योंकि देखो, पार्शियल कोई भी चीज नहीं आपको अच्छी लगेगी। ये एक चीज होती है 100, अब 100 में से अगर कोई भी आपको 50 दे रहा है, तो वो चीज थोड़ी ना डिक्लेयर की जाएगी। 100 का मतलब होता है 100। तो दैट मीन्स दीन और दुनिया दोनों तरह की कामयाबी ही क्या है, एक्सेप्टेबल है। अब देखिए, जिन्होंने अपने बचपन जो है वो खेल-कूद में गुज़ार लिया, जवानी जो है किस चीज़ में, लज़्ज़तों की तलाश में ज़ाया कर दी। अधेड़ उम्र जो है किस में, दौलत के पीछे, आखिरी साल जो है वो शोहरत के उसमें जो है क्या हो गया, शोहरत को हासिल करने में लगा दिया। अब एक आदमी की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि कोई एक आदमी मुसाफ़िर है, ठीक है? उसको कहीं जाना है, वो क्या हुआ कि किसी किनारे पर रात गुज़ारने के लिए कहीं पर बैठ जाए, और वो किनारा उसे इतना खूबसूरत लग जाए बहनों, इतना खूबसूरत लग जाए कि वो वहाँ से जाए ही नहीं। वहाँ से उठकर जाए ही नहीं। तो क्या वो मुसाफ़िर, मुसाफ़िर नहीं है? मुसाफ़िर तो उसको कहा ही जाएगा, लेकिन क्या वो कामयाब कहा जाएगा? क्यों? क्योंकि वो मुसाफ़िर जो है, कहाँ जाना था उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, उसे लखनऊ से चढ़कर जो है कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। तो वो लखनऊ से दिल्ली के बीच में रास्ते में कोई जगह आई, उस तो वो वहाँ पर बैठ गया। तो क्या हम ये कहेंगे कि वो दिल्ली पहुँच गया? नहीं कह सकते। इसका मतलब वो इंसान कामयाब नहीं है, जस्ट बिकॉज़ उसको कोई चीज़ वहाँ की अच्छी लग गई। तो यहाँ पर पार्शियल कामयाबी की बात हो रही है कि पार्शियल कामयाबी कौन-सी है, कि जो दुनियावी कामयाबी को हमने क्या बना लिया, उसको ही पूरी तरीके से मुकम्मल कामयाबी हमने करार कर दिया। अब देखिए, रूल क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं कि जब कोई चीज़ मान लीजिए अपना काम नहीं करती है, हमें हमें क्या बताया गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कौन है कामयाब इंसान, जो अल्लाह को याद करता है और जो है अपनी नफ्स को पाक रखता है। यानी कि हम सब जो अल्लाह को याद करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्लेज़र, यानी कि खुशनुदी हासिल करें। तो वो कौन लोग हैं? वो कामयाब लोग हैं, और उन्हीं को क्या कहा जाता है कि वो सक्सेसफुल हैं। तो एक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाना। तो पर्पस यानी कि बीज बोना, उसकी बात चल रही है। उसको चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि वो जो किसान था, उसने बीज बोया और उसका एम क्या था कि 100 गुना उसको क्या काटनी थी, फसल काटनी थी। तो अब मान लीजिए कार है, तो कार का एक पर्पस है, यानी कि कार हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाती है। अगर एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पर कार का, और कार क्या कर रही है, लेकर नहीं जा रही है, वो हो गई है खराब, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक नहीं लेकर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, उस गाड़ी को डंप कर देंगे, या फिर
उस गाड़ी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे उसकी जगह पर, हाँ, या फिर क्या करेंगे, उसको सस्ते पैसों में बेचकर वो कर देते हैं। अगर इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लें कपड़े का यहाँ पर, कि कपड़ा अगर क्या होता है, फिट नहीं हो रहा है हमको, कोई कपड़ा अगर फिट नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। हाँ, क्या करते हैं, या तो तक़सीम कर देते हैं कि भई किसी दूसरे के काम में आ जाए, या फिर ज़्यादातर उसका पोछा वग़ैरह बना लेते हैं। तो आदमी का भी यही मुक़ाम है फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़रों में, कि जो आदमी अपने रब का फ़र्ज़ नहीं अदा कर सकता, तो उसका भी मुक़ाम फिर यही रहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पार्शियल कामयाबी को कामयाबी नहीं मानते। कामयाबी का सीधा-सीधा मतलब है अपने लिए, दूसरे के लिए और आखिरत के लिए फ़ायदेमंद होना। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अब कामयाब के क्या है, कुछ उसूल हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर जो है क्या चलना चाहिए, तो इंसान क्या होगा, कामयाब होगा बहनों। तो पहली चीज़ क्या है, सेटिंग द राइट गोल, सही मकसद जो है सेट करना, सही मकसद को क्या करना, सेट करना। उसी तरीके से प्रिपरेशन फॉर इट, यानी कि उसके लिए तैयारी करना। अब देखिए वो फलाह की बात हो रही है, तो पूरा वही है किसान वाला, के सही बीज लेकर आना और उसको बो देना। अब उसके लिए प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करना, भाई ज़मीन जोती जाती है, कितना ज़्यादा पानी लगता है उसके लिए, हाँ, या फिर जो है इंसेक्टिसाइड्स उसके अंदर डाला जाता है, जो कि कीड़े मारने वाली दवाई होती है, तो ये सब कुछ है। फिर इसी तरीके से स्ट्राइविंग फॉर इट, उसके लिए कोशिश करना, तो वहाँ सुबह शाम, सुबह में 3 बजे उठ के पानी डालने जाना है, शाम में पानी डालने जाना है, तो उसके लिए कोशिश करना। फिर जब ये सब चीज़ें हो जाएँ, तो क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला में क्या रखना, अपना पूरी तरीके से वो रखना, कि बस अब मैंने जितना काम करना था वो कर दिया, और कामयाब कौन करेगा मुझे, मेरा अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। तो अब एक-एक, एक-एक करके जो है प्रिंसिपल और उसूल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई इंसान क्या करेगा, कामयाबी हासिल कर सकता है। तो पहला उसूल क्या है, कि हमें एक गोल, एक मकसद जो है वो सेट करना है। तो यहाँ पर आयतें मैं इंशाल्लाह पढ़ूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 35। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो और उसकी राह में जिहाद करो, और उस उम्मीद पर कि फलाह पाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वसीला यानी कि कनेक्शन तैयार करो, यानी कि गोल क्या होना चाहिए, कि अल्लाह से कनेक्शन क्या है, पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा इख्तियार करो, यानी कि डर, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तरफ वसीला यानी कि उससे कनेक्ट हो जाओ, और उसकी राह में जिहाद करो। जिहाद का मतलब क्या हुआ, अभी आगे आएगा इसके अंदर, यानी कि उसकी राह में कोशिश करो। और जिहाद एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी और इंथुसियाज्म यानी कि बहुत ज़्यादा जोश के साथ की जाती है। यानी कि किसी भी चीज़ की कोशिश या फिर तैयारी किसके साथ करना, जोश के साथ करना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी राह में जिहाद करो, उस उम्मीद पर कि फलाह पाओ, यानी कि फिर क्या उम्मीद, पहले हम गोल सेट कर रहे हैं यहाँ पर, और उम्मीद क्या है, कि हमें पक्का-पक्का क्या मिलेगी, कामयाबी और फलाह मिलेगी। फिर आयत नंबर सूरह हश्र की आयत नंबर 20 में देखते हैं हम, दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं, जन्नत वाले ही मुराद को पहुंचेंगे, यानी कि किस चीज को पहुंचेंगे, कामयाबी को पहुंचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोजख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं है, जन्नत वाले ही मुराद को पहुंचेंगे। तो क्या होना चाहिए, मुझे अगर उसकी कामयाबी चाहिए, तो मैं जन्नत का गोल सेट करूं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट चल रहा है, कि पहले गोल सेट करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद मुझे तैयारी, फिर कोशिश, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करना है। तो पहली चीज़ क्या थी, कि तकवा इख्तियार करना। दूसरी चीज़ क्या थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट होना। फिर तीसरी चीज़ क्या थी, कि जन्नत के लिए प्रिपेयर करना। और जन्नत के लिए जितनी भी चीज़ें, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ना, कि जन्नती किस तरीके से बन सकते हैं, जो कि लास्ट का टॉपिक ही था, कि सब्र इंसान करता है तो उससे क्या है, जन्नत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे प्रॉमिस की है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 में है, और जो जहन्नम की आग से बच गया और जन्नत में दाखिल हुआ, वो जीत गया, यानी कि वो कामयाब हो गया। तो ये कौन सी कामयाबी चल रही है, ये आखिरत की कामयाबी चल रही है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद सूरह अर्राद की आयत नंबर 28, वो जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं, सुन लो, अल्लाह की याद में दिलों का चैन है। अब देखिए यहाँ पर
हम क्या बात करेंगे कि कैसी अब दूसरी तरफ से अगर मान लीजिए दुनिया के तरीके देखे जाएँ तो क्या है कि खुशी का तरीका या तो इंसान को लगता है आजकल स्टेटस है या फिर पैसे की ख्वाहिश है ना? 2 तरीके से जो है इंसान वो करता है। फ़तह किस तरीके से पा सकता है या तो स्टेटस हो या फिर पैसे की ख्वाहिश हो, ताकि वो मादी चीज़ें यानी कि एक ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो खरीद सके। हाँ, जबकि वो ये नहीं देख पाता कि खुशी जो है कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है बहनों। हालाँकि ये बोलना बहुत आसान होता है जब आपके पास पैसा नहीं होता है। लोग भी बोलते हैं कि जब पैसा नहीं होता तो सब यही बोलते हैं कि पैसा कोई चीज़ नहीं खरीद सकता। लेकिन देयर आर पीपल जो कि सक्सेसफुल होते हैं और जो है क्या करते हैं सुसाइड करते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो पार्शियल कामयाबी है। क्योंकि सुकून नहीं होता। क्योंकि यहाँ सूरह रात में क्या कहा गया कि वो जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं यानी कि इत्मीनान, सैटिस्फैक्शन और सुकून। सुन लो, अल्लाह की याद में ही दिलों का चैन है, तो जिसका दिल इत्मीनान वाला होगा, वो क्या है? वो कामयाब है। तो क्या है कि इनसे जो इत्मीनान है या फिर सैटिस्फैक्शन है, वो टेम्परेरी है। दुनियावी अगर चीज़ों की बात करें दुनिया की जो कामयाबी है, ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया में कामयाब नहीं होना है, लेकिन पार्शियल है। देखिए, दोनों चीज़ें जो हैं बराबर में इक्वल और बैलेंस में लेकर चलनी है। तो दु इन चीज़ों से जो इत्मीनान है या सैटिस्फैक्शन है, वो कैसा है टेम्परेरी है। क्योंकि परमानेंट हैप्पीनेस जो कहाँ है, वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही पास से है, जिसके लिए ये वाली आयत है। परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ से? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट होने में, उसका तक़वा इख्तियार करने में और जो है जन्नत जाने में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ये क्या था, ये हमारा गोल सेट करना था, तो हमें तक़वा इख्तियार करना है, हमें क्या करना है, जन्नत की तैयारी करनी है और हमें क्या करना है, कामयाब होने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अ क्या करना है, उससे कनेक्ट होना है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से ये हमारे गोल हो गए। अब उस गोल के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, है ना? प्रिपरेशन किस तरीके से अब हम करेंगे इसके लिए? अब तैयारी कैसे होगी? गोल हमने सेट कर लिया, तैयारी कैसे होगी कि अपने मकसद और उसको हासिल करने के लिए क्या है, तरीके के बारे में इल्म हासिल करना। तो किस तरीके से अब देखिए कोई किसान है फलाह से लेते हैं ना, फलाह कहाँ से निकला? किसान से। तो वो क्या करेगा वही पहले जाएगा या फिर जो है जितना भी जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, खाद जिसको बोलते हैं, वो होते हैं देखिएगा कि कौन-सी खाद सबसे ज़्यादा अच्छी है, किस बीज के लिए जो है कौन-सा वो रिक्वायर्ड है, कौन-से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि ये जल्दी बढ़ेगा, जल्दी ऐसी चीज़ें होंगी। तो हमें क्या करना है, हमें इल्म हासिल करना है। हम भी उसी की तरह हमें फलाह हासिल करना है, हम मुफ़्लिहून हैं। मुफ़्लिहून कौन? कामयाब लोग हैं, हमें बनना है वो चीज़, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इल्म हासिल करने के इल्म हासिल करेंगे कामयाब होने के लिए। हमें हमारा असल मकसद पता चल गया, ठीक है? अब उसका अंदाज़ा हो गया, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं ताकि हम जो है सारी चीज़ें करें। अब देखिए इंसान को क्या है कि अपना असल मकसद ही नहीं पता आजकल की दुनिया में, ठीक है? अपने रब से बिल्कुल बेखबर है इंसान, तो क्या है हमें उसका भी जो है ध्यान मतलब होना चाहिए, क्योंकि अपना असल मकसद क्या है, उसकी तैयारी नहीं है। ना तो इंसान आज अपने रब को जानता है कि वो कितना मेहरबान है, वो कितना मेहरबान है और ना उसकी इबादत करने का तरीका पता होता है। कितने लोगों से जो उसे नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से कनेक्ट हुआ जाता है। कई लोग इतना बोलते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ती तो हूँ लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पाती। तो क्या है तैयारी की कमी है। तैयारी किस तरीके से भई इल्म नहीं है यानी कि पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से जो है कनेक्ट जो है हुआ जाता है। तो इल्म हासिल करना जो है ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तैयारी जो है उसके लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है, जिसके लिए यहाँ पर सूरह अल हश्र की आयत नंबर 9 है और जिन्होंने पहले से उस शहर और ईमान में घर बना लिया, इसकी लास्ट वाली जो है लास्ट वाला पार्ट जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन पूरा पढ़ देती हूँ। दोस्त रखते हैं उन्हें जो उनकी तरफ हिजरत करके गए और अपने दिलों में कोई हाजत नहीं पाते, उस चीज़ को जो दिए गए और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं। अगरचा
अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो और जो अपनी नफ्स के लालच से बचाया गया तो वही कामयाब है। कौन? जो अपनी नफ्स से बच गया। सिमिलरली अगर देखा जाए यहाँ पर, तो एग्जाम की यहाँ पर बात हो रही है, तो जब कॉपी खुली हुई होती है ना, तो दिमाग बार बार कहता है कि थोड़ा सा जो है फोन यूज कर लिया जाए, थोड़ा सा जो है कहाँ चल वो उधर खेलने चला जाए, कहाँ पर, ग्राउंड में चला जाए। तो वो नफ्स है, क्या बोल रही है कि नहीं तुम तैयारी नहीं करो, और आप बैठे हो इल्म हासिल करने के लिए। सिमिलरली क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को से कनेक्ट होने के लिए हम इल्म हासिल करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो अब यहाँ शैतान भी क्या कर रहा है कि दिमाग में कहीं न कहीं घुसने की कोशिश करेगा, और वो नफ्स को हमारी क्या करेगा, वो देगा कि नहीं, तुमको जो है ये चीज़ नहीं सुननी है। ये जो है 1 घंटे का लेक्चर है, कौन सुनेगा? और ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। तो ताज्जुब की बात ये है, नमाज़ पढ़ना है ये सबको पता है, जहन्नुम है ये सबको पता है, और जन्नत है ये भी सबको पता है। उसके बावजूद भी क्या है, कितने लोग हैं जो कि जन्नत में जाने की कोशिश कर रहे हैं? पता तो है, लेकिन कोशिश कौन कर रहा है? तो लोग कहते हैं कि ये सब तो हमें पता है, नई बातें नहीं है, मत बताइए, लेकिन आप कोशिश कितनी कर रहे हैं? जब आपको पता है कि ये चीज़ सच भी है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप झुठला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी चीज़ क्या है कि जो अपने नफ्स के लालच से बचाया गया, तो वही क्या है, कामयाब है। तो अपनी नफ्स को क्या करना है, अपनी नफ्स पर काबू रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरीके से तैयारी करनी है अल्लाह से कनेक्ट होने के लिए? अपनी नफ्स पर जो भी अल्लाह ने हुक्म दिया और जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया, उस पर क्या रखना है, काबू रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से थर्ड क्या है, जिहाद, टू स्ट्राइव एंड टू मेक एफर्ट, यानी कि कोशिश करना। अब जिहाद का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। किस तरीके से? पूरे जोश के साथ कोशिश करने से, और एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक तरीके से, ठीक है, एंथुसियाज्म के साथ पूरी तरीके से। तो जिहाद का मतलब लड़ाई। हाँ, ज़्यादातर जो है लोग समझते हैं। जिहाद होता है किसी भी चीज़ में जोश आ जाना। अब देखिए हमें क्या करना है, एफर्ट करना है और कोशिश करनी है। बस पूरे जुनून में हमें लग जाना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट होने के लिए। माफ़ कीजिएगा। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट होने के लिए लग जाना है। और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की, ज़रूर हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे, और बेशक अल्लाह नेकों के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा यहाँ पे, जिसने भी कोशिश की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साथ है बहनों, यानी कि उसको रास्ता दिखा देंगे। कैसे रास्ता दिखा देंगे? फॉर एग्जाम्पल कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो करते-करते वो दिमाग में आ ही जाता है कि अच्छा इस मेथड से होगा। इसी तरीके से जब कोई इंसान कोशिश करता है अल्लाह से कनेक्ट होने की, उसका तकवा इख्तियार करने की, जन्नत पाने की, तो उसके दिमाग में अपने आप ही चीज़ें आ जाती हैं, एंड दीज़ आर द साइन्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो अल्लाह उनके दिमाग में डालता है। तो उससे क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ खुद बोल रहे हैं कि जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की, जो अल्लाह की राह में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह उन्हें खुद रास्ता दिखाता है बहनों। क्या ये किसी मौज़े से कम है कि मेरा रब जो है खुद रास्ता दिखा रहा है? और बेशक अल्लाह नेकों के साथ है, और वो साथ में भी है, तो अल्लाह का साथ तो मिल गया, और अल्लाह कनेक्ट भी हो रहा है किस तरीके से, आपको रास्ता दिखाकर। तो फिर अब क्या बचा? सिर्फ़ और सिर्फ़ जन्नत जाने की देरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें क्या करना है, आखिरत की कामयाबी चाहिए, जो कि कहाँ मिलेगी, जन्नत में जाकर मिलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से होती है। अब अब जब सारी चीजें हो गई हैं, इसके बाद ठीक, अब मान लीजिए जैसे जिहाद है, उसमें बहुत सारी रुकावटें आएंगी, नफसी होंगी, ख्वाहिशातें होंगी, जो हम कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर, शैतान के वसवसे होंगे, और दुनियावी क्या होंगे, लालच का जो है इंसान को सामना भी करना है। लेकिन क्या चीजें हमने पढ़ी अभी तक, गोल को सेट करना, फिर उसको हासिल करना, फिर उसके लिए कोशिश करना, और चौथा क्या है कि कामयाबी का चौथा उसूल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर मुकम्मल तरीके से क्या करना, तवक्कुल करना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद क्या कर लेना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल कर लेना है पूरी तरीके से। तो अब जितने भी अपने पास, जितने भी दुनिया के सारे असबाब हैं, जितने भी चीज़ें हैं, यूटिलाइज़ेशन है, उससे करने के बाद क्या है
کہ एक मोमिन को चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पूरी तरीके से क्या कर ले, एतमाद कर ले, उस पर क्या हो जाए, पूरी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर डिपेंड हो जाए। देखिए तवक्कुल का मतलब ही यही था, तवक्कुल अल्लाह। ये टॉपिक हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो तवक्कुल का मतलब क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिंसियर डिपेंडेंस ऑफ द हार्ट ऑन अल्लाह, यानी कि मैंने कनेक्ट कर लिया, मैंने सारी चीजें कर ली, अब जो करना है मेरे रब को करना है। तो तवक्कुल का बेसिकली मीनिंग ये था कि सारी चीजें करने के बाद, सारी कोशिशें करने के बाद जो एंड रिजल्ट है उसका क्या करना, एंड रिजल्ट को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर छोड़ देना। अब वो चाहे सही है तो तवक्कुल करना, अब चाहे वो आपकी दिमाग के परे है तो तवक्कुल करना। तो ट्रस्ट अल्लाह किसी भी चीज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 3 में कहते हैं, और उसे वहां से रोजी देगा। ये कोशिश करने वालों की बात हो रही है कि देखिए अब इंसान रोजी के लिए कोशिश करता है, दुनियावी बात हो रही है, दुनिया की कोशिश के लिए। और इसे वहां से रोजी देगा जहाँ जहाँ उसका गुमान ना हो, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है, बेशक अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अंदाजा का मतलब क्या होता है ना, प्रोपोर्शन होता है कि अंदाजे से दे दीजिए किसी भी चीज को, तो नपा और तुला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर चीज़ का पता है कि किसको कितना चाहिए। तो कभी भी हमें, अब हमने 4 प्रिंसिपल पढ़े कि हमें कामयाब होने के लिए सबसे पहले एक गोल सेट करना है। अब देखिए यहाँ ये बात आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें क्या करना है बहनों, कि दुनियावी कामयाबी के लिए भी बात कर लें कि मान लीजिए अगर किसी मेरी बहन को आलिमा बनना है, किसी मेरी बहन को जो है बहुत अच्छी साइंटिस्ट बनना है, किसी मेरी बहन को जो है बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें करनी है, तो पहले आप अपना गोल सेट कर लें। गोल सेट करने के बाद उसके लिए इल्म हासिल करें। देखिए उसमें कोताही नहीं, इल्म में जो है कोई कोताही नहीं। फिर उसके बाद जो है उसके लिए कोशिश करना। अब कोशिश करने में, जिहाद करने में एनर्जी चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा कोशिश चाहिए होती है। ठीक? कोशिश कर ली, जब 3 चीज़ें हो गई, अब एंड रिज़ल्ट तवक्कुल करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जो है छोड़ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह कामयाबी जो है मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा कि हम ऐसे, जब लगेगा ना कि कामयाबी नहीं मिल सकती, तो भी कामयाबी मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर छोड़ दें चीज़ें। इसी तरीके से अगर दुनियावी चीज़ को देखा जाए, अल्लाह से कनेक्ट होने की कोशिश करें, गोल बनाएँ कि मुझे कनेक्ट होना है। मेरी नमाज़ें आजकल सही नहीं हो रही हैं, तो मुझे सही से नमाज़ें पढ़नी है। फिर उसके लिए क्या करना है, इल्म हासिल करना है। भाई देखें लंबे सजदे किस तरीके से करने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये देखें कि कुरान को जो है अच्छे से पढ़ना शुरू करें। किसी एक कुरान की आयत को इस तरीके से पढ़ें कि उसके ऊपर जो है क्या हो, अमल करें। तो जब ये दोनों चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद कोशिश करें उस पर अमल करने की। तो जब तीनों चीज़ें हो गई, अब फिर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जो है क्या करें, यकीन कर लें कि अल्लाह देखिए मैंने कोशिश कर ली, ये मेरा गोल था आपसे कनेक्ट होने का, इतनी कोशिश मैंने कर ली है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है खुद ब खुद आपसे कनेक्ट हो जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है, दुनिया दोनों तरफ का हमको फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हुआ? मुझे भी फ़ायदा हुआ उस चीज़ से। मान लीजिए अब देखिए आलिमा है, कोई, तो उससे उसको खुद को फ़ायदा हुआ, वो खुद सुधरी। उसके बाद उससे जितने लोग सुनेंगे वो सुधरे, और जो वो न जो है इस दुनिया से चली भी जाएँगी, तो जितने लोग अमल कर रहे होंगे तो उसको भी फ़ायदा होगा। तो कामयाबी एक फ़ायदेमंद चीज़ है, जिससे कि फ़ायदा हो किसको? खुद को, दूसरों को, और किसको? आखिरत में भी जो है इंसान को फ़ायदा हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पूरा-पूरा तवक्कुल कीजिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जल्द जो है क्या करते हैं, इंसान को कामयाब कर देते हैं। ठीक है? अब देखिए क्वालिटीज़ क्या होती हैं, हाई अचीवर्स यानी कि जो कामयाब लोग होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 9 क्वालिटीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अल्लाह ने मुसलमान से उनके माल और जान खरीद लिए हैं, उस बदले पर कि उनके लिए जन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर सब्र की बात आ गई है ना। अल्लाह की राह में लड़ें तो मारें और मरे, उसके ज़िम्मे करम पर सच्चा वादा तौरात और इंजील और कुरान में। और अल्लाह से ज़्यादा कौल का पूरा कौन? तो खुशियाँ मनाओ अपने सौदे की, जो तुमने
اس سے کہا اور یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ کون ہے جو قول کو پورا کرے گا، یعنی کہ کون ہے جو پرومس پورا کرے گا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر پہلی اس سے پہلی آیت پڑھیں تو کیا ہے، اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تم نے جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے وہاں سے چیزیں آئیں گی، الحمدللہ۔ تو جب اور یہاں پر اللہ نے بول دیا اور اللہ سے زیادہ کال کون پورا کرے گا، دیکھیے انسان مکر جاتا ہے لیکن میرا رب نہیں مکرتا ہے بہنوں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، کون لوگ کامیاب، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے جو کہ جن کو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا، اپنا پورا جو ہے وعدہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، کیونکہ میں نے گول سیٹ کیا، میں نے کیا کیا، اس کے لیے تیاری کی، میں نے اس کے لیے کوشش کی، اور اب اللہ وعدہ پورا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا سورہ توبہ میں کہ کون ہے جو کیا کرے، اللہ سے، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون، تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی کہ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے، الحمدللہ۔ تو کامیاب لوگ کون ہو گئے؟ اب دیکھیں یہاں پر اور کامیاب لوگوں کی باتیں بتائیں تو توبہ والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدے والے، بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے، اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو۔ یعنی کہ کن لوگوں کے لیے کامیابی ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، سراہنے والے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان لوگوں کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پرومس بھی نہیں توڑتا، جن لوگوں میں یہ صفات ہوتی ہیں۔ تو اب ان چیزوں کو جو ہے میں نے لسٹ کر کے یہاں بنا لیا ہے، الحمدللہ۔ تو 9 کیریکٹرسٹکس کیا ہیں ہائی اچیورس کی، یعنی کہ ان کے اندر یہ صفات موجود ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ کون؟ توبہ کرنے والے۔ تو توبہ کیا تھی؟ توبہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ توبہ جو ہے معافی مانگنے کے اس طریقے کو بولتے ہیں کہ جو آپ نے پہلے ایک گناہ کیا، اس پرٹیکولر گناہ کے لیے جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی 4 جو تھے بہنوں رولز تھے کہ آپ کیا کریں گے کہ پہلا جو ہے آپ کے جو ہے اس گناہ کے جو ہے معافی مانگے اللہ سے، پھر جو ہے دل میں ندامت کو یعنی کہ گلٹ ہونا چاہیے، سدھرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور یہ پرومس ہونا چاہیے کہ اللہ میں اس چیز کو جو ہے دوبارہ نہیں دہراؤں گا یا دوبارہ نہیں دہراؤں گی۔ تو وہ توبہ کرنے والے کیا ہے؟ کامیاب ہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے ہی پڑھا۔ الحمدللہ۔ تو کون کامیاب ہے کہ جن سے کوئی غلطی ہو جائے، ہاں، جن سے کوئی غلطی ہو جائے، انہیں وہ چیز لگے کہ وہ غلط ہے، ان کے دل میں ندامت ہو یا پھر گلٹ ہو، پھر اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اگر کوئی غلط چیز ہے، الحمدللہ۔ اور جو ہے پھر پرومس کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اس چیز کو جو ہے دوبارہ نہیں دہرائیں گے، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے دوسرا جو کہا گیا، کون؟ عبادت والے۔ تو اللہ کی فرما برداری اور محبت میں شامل ہے کیا چیز؟ عبادت۔ ہر وہ عمل جو اللہ کی محبت میں کیا جائے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ دیتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کیا ہوتا ہے نا، وہ عبادت ہوتا ہے۔ یعنی کہ کیسے لوگ ہائی اچیورز ہیں، کیسے لوگ کامیاب ہوں گے؟ جو اللہ کی محبت میں چیزیں کرتے ہیں، دوسروں کے لیے، اپنے لیے، آخرت جٹانے کے لیے، ہاں، جن کو جانتے نہیں، یتیموں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، الحمدللہ۔ کون سے لوگ کامیاب ہیں؟ جو عبادت گزار ہیں، جو ورشپ کرتے ہیں، پریزنگ پریزنگ یعنی کہ تعریف کرنا یا حمد و ثنا بیان کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان سے کیا ہے، اور جو کس چیز پر شکر ادا کرتے ہیں؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور جو نہیں عطا کیا اس چیز کے لیے بھی کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کون ہے کامیاب لوگ؟ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کامیاب بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے توبہ کرنی ہے، پھر اس کے علاوہ ہمیں عبادت گزار بننا ہے، پھر اس کے علاوہ ہمیں تعریف، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے ہر ایک چیز کے لیے بہنوں۔ ایک ایک نوالا کھاتے ہو اس میں الحمدللہ بولا کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے والے وہ اللہ کی خاطر کھانا پینا اور باقی لذتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ باقی لذتیں کون سی ہو گئی؟ جو کہ دنیا کے حساب سے تو
हलाल है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या की हैं, हराम की हैं। और क्या करते हैं, जो रोज़ा रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए गुस्सा भी हराम है, तो उन सब चीज़ों पर भी क्या रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। उनसे क्या करते हैं, परहेज़ रखते हैं। तो वैसे लोग क्या हैं, वो लोग कामयाब हैं। इसी तरीके से रुकू करते हैं, बोइंग रुकू करते हैं या फिर झुकते हैं, तो आप क्या है, आजिज़ी इख्तियार करते हैं। झुकने का मतलब क्या हुआ, आजिज़ी इख्तियार करना। तो कोई भी चीज़ आ गई, कामयाबी भी क्या हो सकती है बहनों, हमारे लिए हमने पढ़ा था एक जगह कि कामयाबी भी क्या हो सकती है, हमारा टेस्ट हो सकती है। तो क्या हो गया, जितनी कामयाब होता जाता है इंसान, उतना ज़्यादा झुकता जाता है। तो आजिज़ी इख्तियार करने वाले कौन होते हैं, कामयाब होते हैं। इसी तरीके से सजदा सजदा यानी कि प्रोस्ट्रेशन, सजदा करने वाले कामयाब होते हैं। वो हालत जिसमें इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे करीब होता है, उसे सजदा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों की भलाई में भी क्या होता है, इंसान फ़िक्रमंद होता है, ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से द एन्जॉयिंग गुड, एन्जॉयिंग गुड का मतलब क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये 7th है। तो दूसरों की भलाई के बारे मतलब ऐसा नहीं कि खुद को कामयाबी मिली है तो खुद के लिए भी खुश होए और दूसरों की भलाई में भी खुश हो रहा है कि मैं अपना अच्छा तो कर ही रहा हूँ, दूसरों का भी अच्छा कर रहा हूँ। तो दूसरों की भलाई में भी क्या होना, खुश होना है। और जो है दूसरे के लिए फ़िक्रमंद होना, दूसरे की नसीहत देना दूसरे को, दूसरे की रहनुमाई करना, दूसरे को क्या करना, हौसला देना। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? द एन्जॉयिंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह 7th। 8th क्या है? फॉरबिडन इविल, यानी कि हराम, बुराई और हर वो चीज़ जो कि अखलाक को, जिस्म को जो है क्या करती हो, नुकसान पहुँचाती हो। उस चीज़ को छोड़ने वाले, उस चीज़ को जो है क्या करने वाले, तर्क करने वाले क्या हैं, कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से 9th है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऑब्जर्विंग डिवाइन कमांडमेंट्स, कि अल्लाह की एक कमांड है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ हदें हैं जो अल्लाह ने सेट की हैं, लिमिटेशन की हैं जो अल्लाह ने मुक़द्दर कर दी हैं, तो उन हदों में रहने वाले, हाँ, हदों को पार ना करने वाले क्या हैं, कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से जो है देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, कि हमने आज पढ़ा कामयाबी के बारे में। कामयाबी एक अरेबिक वर्ड है जो कि किससे लिया गया, फलाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये देखिए कि हमारा गोल तो ये हो गया, लेकिन अब काफ़िरों का क्या? जिनके पास जो है इतना सब कुछ है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह तौबा की आयत नंबर 55 में, तो तुम्हें उनके माल और उनकी औलाद का ताज्जुब ना आए। अल्लाह यही चाहता है कि दुनिया की ज़िंदगी में उन चीज़ों से उन पर वबाल डाले और कुफ्र ही पर उनका दम निकल जाए। तो यानी कि ये कौन है जो कि इनकार करते हैं किससे? आखिरत से। अब हमें तो पता चल गया भाई कि कामयाबी दोनों जगह की होती है। दुनिया की भी कामयाबी हो गई और आखिरत की भी कामयाबी हो गई। तो काफ़िर कौन हो गए? जो कि क्या करते हैं, हाँ, कुफ़्र करते हैं, इनकार करते हैं आखिरत के दिन से, हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं है, हाँ, नाउज़ुबिल्लाह। और क्या कहते हैं? रसूलों से इनकार करते हैं। तो काफ़िर काफ़िर यानी कि पार्शियल कामयाब, और पार्शियल कामयाबी तो कोई कामयाबी है ही नहीं। आखिरत की कामयाबी भी कामयाबी है, तो हमें दोनों कामयाबी लेकर चलना है बहनों। तो जो लोग सिर्फ़ दुनिया में कामयाब है और हमें लगता है कि सिर्फ़ वही कामयाब हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें उनके माल और उनकी औलाद का ताज्जुब ना आए। अल्लाह यही चाहता है कि दुनिया की ज़िंदगी में उन चीज़ों से उन पर वबाल डाले और कुफ़्र ही पर उनका दम निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें कभी भी दुनियावी चीज़ को देखकर क्या है, दुनियावी कामयाबी को देखकर क्या है, लालच नहीं करना है। हमें पता है कि दुनियावी कामयाबी तो है ही, क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए भी मना नहीं किया। लेकिन हमें उससे ज़्यादा क्या करना है, आखिरत की कामयाबी को भी जो है क्या करना है, पहुँचना है। हमें मुफ़्लिहून बनना है इंशाअल्लाह। तो आज का जो है एक बार फिर से वो कर लेते हैं कि फलाह का मतलब हुआ कोई भी चीज़ जो कि फ़ायदेमंद हो। खेती से वो निकला कि बीज बोया और 100 गुना उसका जो है फ़ायदा मिलता है। फिर उसी तरीके से जो है हमने पढ़ा कि हमने पढ़ा कि जिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी चीज़ें बनाई हैं, और जो है फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है और जो है वर्क लाइफ जो है, हर तरह की कामयाबी है। लेकिन फिर अल्लाह ने 2 हर चीज़ों को जोड़ों में बनाया, तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी क्या है? वो मुकम्मल कामयाबी है। दुनिया की भी कामयाबी रहे और आखिरत की भी कामयाबी रहे।
پھر اس کے بعد ہم نے 4 جو ہے پرنسپلس پڑھے، 4 اصول پڑھے کہ پہلے گول سیٹ کرنا، پھر اس کے لیے تیاری کرنا، پھر اس کے لیے کوشش کرنا، پھر اللہ پر کیا ہے مکمل طریقے سے توکل کرنا۔ اس سے کیا ہوگا، انسان جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ پھر جو ہے ہم نے پڑھا کہ کامیاب انسانوں کی کیا ہوتی ہیں، 9 صفات ہوتی ہیں، جس میں جو ہے پہلا کیا تھا کہ جو توبہ کرتے ہیں وہ، جو عبادت کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جو روزہ رکھتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا جو رکوع کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اسی طریقے سے جو حرام اور برائیوں سے بچتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ پھر آخری تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون کے مطابق جو حدیں ہیں، حدوں میں رہنے والے کیا ہیں، کامیاب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی اپنے رب کی طرف سے ہمارا اب صحیح رویہ رکھتے ہیں الحمدللہ، اور جو اس کی عبادت کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، وہ مضبوط کردار والے لوگ ہوتے ہیں اور ہمیشہ جو ہیں فرما بردار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹر۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ